सुबह का थोड़ा सा सीन बिल्कुल ही गड़बड़ हो रखा था क्योंकि परी का मूड बहुत ज़्यादा ख़राब था। और एक और तो खुशखबरी मैं आपको देना भूल ही गई थी अपनी परेशानियों में। उसके बाद मैं आ गई थी, फ्रेश हो गई थी। उसके बाद हस्बैंड का मैसेज आया कि उनको आज टिफ़िन नहीं चाहिए। तो मुझे गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आज ही হয় মানডে। পৰী বাৰ্থডে আছিলে ছেটাৰডে আৰু পৰী বাৰ্থডে ব্লগটো এই মাত্ৰ মই এডিট কৰি পেলাই মানে এতিয়া এক্সপোৰ্ট কৰিছোঁ, আপলোড কৰিব আছে। তাৰমানে কি হয়, পৰী বাৰ্থডেত আলহীও আহিছিলে, মানে দাদাহঁতো আহিছিলে। ভাইটিহঁতটো সেইদিনাই ঘূৰি গ'লগৈ, কিন্তু দাদাহঁত থাকিলে। কালি ছানডে আধা বেলাটো মানে বিজি থাকোঁতেই গ'ল মোৰ। তাৰপিছত একেবাৰে মানে কি হ'ল, ভাগৰিও গ'লোঁ একচুৱেলি, বেক টু বেক বহুত বেছি কাম হৈ আছিলে। চ' ইভিনিংটো পূৰা শুলোঁ মই, 6:30ৰ পৰা 8টা বজালৈকে মই শুইছোঁ। এতিয়া একদম অড টাইম কেতিয়াও নুশুঁ, কালি শুলোঁ। তাৰপিছত আৰু ব্লগ শ্লগ সেনেকৈ কৰিবও মন নগ'ল, এডিটো কৰিব নোৱাৰিলোঁ, একোৱে কৰিব নোৱাৰিলোঁ। চ' আজি এতিয়া ইভিনিঙৰ পৰাহে ব্লগছ মানে আৰম্ভ কৰিছোঁ। কিহৰ কাৰণে, ৰাতিপুৱাৰ পৰা একচুৱেলি ঘৰটো বহুত বেছি মানে কি হয়, বেচিজিল হৈ যায়। আলহী অহা বুলি নহয়, একচুৱেলি বাৰ্থডেও আছিলে, মানে বস্তু ইফাল সিফাল হৈ গ'ল। আৰু এটা কথা অৱশ্যে, মোৰ হেয়াৰ কাটটো আপোনালোকে মন কৰিছেনে? মই কালি জ'চতে চুলিখিনিও কাটি আহিলোঁ। জ'চত বুলি নহয়, মোৰ চুলিখিনি ইমানেই ৰাফ হৈ আছিলে, চুলিখিনি সৰি আছিলে। আৰু মোৰ বহুত দিনৰ পৰা এই কাটটো মানে দিব মন গৈ আছিলে। বহুত আগতে মই এইটো কাট এবাৰ ৰাখিছিলোঁ, যে এইটো কাটত মোৰ অলপ মানে অভেল ফেচ যে অলপ হেৰি লাগে। বেছি দীঘল হৈ গ'লে কি হয়, মোৰ কপালখন ওলাই পৰে, মানে চুলিখিনি চেপেটা হৈ যায়। মই এইবাৰ এইটো কাট দি চাওঁ। চ' কেনেকুৱা লাগিছে হেয়াৰ কাটটো ক'ব। অৱশ্যে এতিয়া একো মুখত লগোৱা মেলা নাই, মুখখন একদম নেচাৰেলি আছে। মানে কিবা ড্ৰেছ আপ কৰিলেহে গম পোৱা যাব যে কেনেকুৱা লাগিছে। চ' আজি ৰাতিপুৱাৰ পৰা মই বহুত বেছি বিজি। সেই ঘৰ চিজিল কৰা, ঘৰ চাফা কৰা, ফেন চেন চাফা কৰিলোঁ। আৰু তাৰোপৰি এইটো ৰুমত চাওক, ইয়াতে মোৰ চিলাই মেচিন আছিলে নহয়, ইয়াতে এতিয়া পক্ষীৰ পঢ়া টেবুলখন মই লৈ আহিলোঁ এটা কাৰণতে। তাই পঢ়া টেবুলখন ওপৰত আছিলে, ওপৰে তাই নাযায়, তাই আহি পেলাই ইয়াতে চব বস্তু দাম কৰে। তাই কিতাপ চিতাপ চব ইয়াতেই থাকে। চ' তাই পঢ়া টেবুলখন এনেই তাত আছিলে, আৰু পঢ়োঁতে ডাইনিং টেবুলত পঢ়ে। চ' মই ভাবিলোঁ যে যেতিয়া চিজিল কৰিছোঁ, একেবাৰতে পঢ়া টেবুলখন তললৈ লৈ আহোঁ। চ' অনিমাই মই ধৰি পঢ়া টেবুলখন তললৈ আনিলোঁ। তেওঁকে অনুৰোধ না, কাম আহি ক'ব পৰা নাই। চ' অনিমাই মই ধৰি পঢ়া টেবুলখন তললৈ আনিলোঁ চামহাও। আৰু সেইখিনি মানে চুমতি আহি পাইছে, তাইও বিচাৰি ধৰি দিছে। চ' সেইখিনি কৰিলোঁ, গোটেই চিজিল টিজিল কৰি আজি মানে বহুত দেৰি হৈ গ'ল। ভাত খাওঁতে মোৰ চাগে 3:30 মানেই বাজিছে। ইহঁতকতো সোনকালে দি দিলোঁ বাৰু। চ' সেইকাৰণে আজি ভাবিছোঁ ইভিনিঙৰ পৰাই ব্লগটো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। চ' ব্লগটো চাই থাকিব আপোনালোকে। বৰ্তমান ইভিনিং ৰুটিনটোৱে শ্বেয়াৰ কৰোঁ বুলি ভাবিছোঁ। কিনো কৰোঁ আমি আবেলি গোটেইকেইটাই মিলি চাই থাকিব। गुड इवनिंग फ्रेंड्स। कुछ चेंज आपको नज़र आया मेरे लुक में? हेयर कट कर लिया है मैंने। मतलब मैं बहुत दिनों से सोच रही थी कि मुझे हेयर कट करना है, पर कल मैंने कुछ सोचा ही नहीं। मैं सीधा जाके पार्लर में बैठ गई कि मुझे काट दो बस, मेरे बाल मुझे छोटे करने हैं। तो एक्चुअली करने का मन भी नहीं था। मतलब पार्लर में बैठे बैठे भी मैं सोच रही थी कि यार करूँ या ना करूँ, लेकिन मेरे बाल बहुत ज़्यादा रफ़ हो गए थे, झड़ भी रहे थे, बहुत ज़्यादा झड़ रहे थे। और उसके बाद मुझे ये वाला जो लुक है ना, ये करने का बहुत ज़्यादा मन भी कर रहा था। तो इस बार ये लुक ट्राई करके देखती हूँ। बीच में मैंने ये लुक एक बार रखा हुआ था अपना, तो मेरे फेस पे अच्छा भी लगता है, मुझे अच्छा लगता है। पता नहीं आप लोग को अच्छा लगेगा कि नहीं। और फ़िलहाल पानी नहीं है, पानी एक्सीडेंटली चला गया, लाइक कोई कुछ पाइप पे मसला हुआ है, तो अभी पानी नहीं आ रहा है। और स्नैक्स का भी टाइम हो गया है। आज इवनिंग से ब्लॉग शुरू कर रही हूँ। सुबह से मैं बिल्कुल बिज़ी थी। मतलब सैटरडे परी के बर्थडे जाते हुए ही मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी हो गई थी। मेहमान भी थे, उन लोगों को भेजा, उसके बाद घर की सफाई। और जब बर्थडे होता है ना, घर बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। मतलब कुछ भी इवेंट होता है तो घर की सफाई की। और पोखी का जो स्टडी टेबल है उसको मैं नीचे वाले रूम में ले आई। तो आज बहुत सारा काम था। अभी फ़िलहाल मैंने परी के बर्थडे का व्लॉग एडिट किया है, उसको अभी एक्सपोर्ट करके आई हूँ। और बच्चों को अभी खाना है फ्रेंच फ्राइज़। तो फ्रेंच फ्राइज़ मतलब इस बार मेरे पास फ्रोज़न रखा हुआ है, थोड़ा सा ही पैकेट में बचा है। तो सोचिए उनको ये फ्राई करके भी दे देती हूँ, क्योंकि पानी नहीं है कुछ और तो मैं बना नहीं पाऊँगी। सो अभी वही करती हूँ मैं, और ब्लॉग भी यहीं से शुरू करती हूँ। कैसा मैं पढ़े को से कि मैं ये क्रीमा इनके फ्रेंच फ्राइज ढाली बिले खा लो ची है हैं?
बहुत टेस्टी হয় মিঠাৰ লগত সল্টি আৰু এইটো পৰীৰ বাৰ্থডে কেক অলপমান বচা আছে তাহাঁতকে দিছোঁ খাবলৈ খোৱা মামা আৰু পানী আহাই নাই মই হাতখন ক'ত ধুওঁ তাকে চিন্তা কৰি আছোঁ কেকটো কাটি পেলাই পানী একেবাৰে নাই কোনো মানে হেৰিতে নাই বাথৰুমত অলপমান মই পানী উলিয়াই থৈছিলোঁ আমাৰ বাথৰুমত তাৰ পৰাই ধুওঁগৈ আৰু सो राति डिनर बनाबले लैसो यहाँ मैं डिनर की प्रिपरेशन कर रही हूँ और याते बनाबले लैसो ससेज चिकेन ससेज आनी थैसिलो और ससेजটো অলপ ডাঙৰ ডাঙৰকৈ বনাই দিলে সিহঁতে খাই বেয়া পায় সো মই এনেকৈ সৰু সৰুকৈ কাটি পেলাই বনাওঁ और भाविलो अलपमान शूटो कर थों आपलोके चाब पारिब तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ चिकन सॉसेज ये थोड़ा बड़ा बड़ा पीस होने से ना बच्चों को पसंद नहीं आता है तो मैं इस तरह से छोटे छोटे पीसेस काट लेती हूँ और काटने के बाद किस तरह से बना रही हूँ मैं वही शूट करना चाहती थी तो यहाँ पे मैंने प्याज और लहसुन को थोड़ा सा तेल में सॉटे कर लिया है और बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं किया है और वहाँ पे मैंने इन सॉसेज को डाल दिया है सो तेलते मैं प्याज और নহৰু फ्राई कर लै एकदम भाल सटे कर लैसो किन्तु एकेबारे ब्राउन करा नाई और तात ससेजखिनि ढाली दिसो ससेजखिनि ढाली ताते भालके भाजिलो उसके बाद मैंने वहाँ पे नमक और ब्लैक पेपर पाउडर मिलाया है मसालों में बस वही मिलाया है और कुछ नहीं सो ताते मैं निमक और ब्लैक पेपर पाउडर मिलाइसो और यार पिছত याते सोया सॉस केचप और विनेगर मिलाइसो सो उसके बाद उसको अच्छे से फ्राई करने के बाद सॉसेज को मैंने यहाँ पे थोड़ा सा सोया सॉस केचप है ये और थोड़ा सा विनेगर यहाँ पे मिक्स किया है बिल्कुल ही सिंपल है और यहाँ पे कुछ और इंग्रेडिएंट नहीं है बस सॉसेज को थोड़ा सा अच्छे से फ्राई करना होता है और इसके बाद इसको अच्छे से ठीक से मिला के थोड़ी और देर हम लोग फ्राई कर लेंगे तो इस तरह से सॉसेज रेडी हो जाएगा सो एनेके एखिनि मिलाए फ्राई कर लो पाছত सॉसेजটো रेडी हो जाए सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स আজি टिউसडे मॉर्निंग और এতিয়া মই সবকে স্কুল পঠালো হাজবেণ্ডো অফিস গ'ল আৰু মই নিজৰ এতিয়া ব্ৰেকফাষ্ট খাব লৈছোঁ চাহ একাপ বাকি আনিছোঁ আৰু ভাবিছোঁ আজিৰ দিনৰ মানে ভিডিঅ'টো আজি এতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰোঁ আজিতো পৰীক পঠাওঁতে বিৰাট বেছি প্ৰব্লেম হৈছে পৰীৰ একচুৱেলি কি হৈছে কালিৰ পৰাই তাই বহুত বেছি মুড বেয়া কালি তাইৰ লগত বহুত বেয়া ইনচিডেণ্ট এটা হৈ গ'ল আৰু কি ইনচিডেণ্ট হ'ল মোৰ মানে আপোনালোকক ক'বও মানে বেয়া লাগিছে যে মানুহে এনেকুৱাও কৰিব পাৰে মানে তাইক ঘৰত মাতি পেলাই তাইক বেয়াকৈ কিবাকৈ কৈছে তাৰমানে তাকো ডাঙৰ মানুহে সো ভাবিয়ে কিবা লাগিছে কিন্তু উপায় নাই মই একো কৰা নাই কাৰণ মই এইবিলাক মানুহৰ লেখত মই মানে লোৱা নাই যে মানুহে মানে এনেকৈ ঘৰলৈ মাতি ল'ৰা ছোৱালীক যে এনেকৈ বেয়া বিহেভ কৰিব পাৰিব মইতো ভাবিবও নোৱাৰোঁ মোৰ ঘৰত কোনোবা মানে এনিমিৰ ল'ৰা ছোৱালী আহিলেও এটলিষ্ট মোৰ ওচৰত সেইটো বিহেভিয়াৰ নাপায় তো তাই কালিৰ পৰা বহুত বেছি মুড বেয়া কালি তাৰ পৰা অহাৰ পিছৰ পৰাই তাই কান্দিয়ে আছে মানে এইটোৱে ভাবি আছে সিহঁতৰ মনত একচুৱেলি কি হয় বহুত বেছি ইম্পেক্ট পৰি যায় ন মানে মোক এনেকৈ কিয় ক'লে সো মইতো তাইক এইটোৱে কৈছোঁ যে নেক্সট টাইমৰ পৰা বাছ মানে তুমি এভইড কৰা নাযাবা মই কাৰণ বেলেগ মানুহৰ বিহেভিয়াৰটো মই চেঞ্জ কৰিব নোৱাৰোঁ মই বাচ্চাকে বুজাব পাৰিম সো আজিও তাই বহুত বেছি ক্ৰেংকি ৰাতিপুৱা চামহাও তাইক মই বুজাই মেলি পঠাইছোঁ बाकी आज वीडियो तो यार आरम्भ करूँ सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स आज है ट्यूसडे मॉर्निंग और सबको भी भेज दिया है मैंने बिल्कुल फटाफट जल्दी में भेजा है और आज सुबह का थोड़ा सा सीन बिल्कुल ही गड़बड़ हो रखा था क्योंकि परी का मूड बहुत ज़्यादा ख़राब था परी का एक्चुअली कल से ही मूड ख़राब था वो कल मतलब किसी के घर गई थी तो वहाँ पे उसको बहुत ज़्यादा बुरा बिहेवियर मिला तो वो आके बहुत ज़्यादा अपसेट थी और मुझे बोल भी रही थी कि मुझे क्यों ऐसे बोला लेकिन अभी देखिए बड़े लोग हैं तब बड़े लोगों को भी ख़राब लगता है लेकिन बच्चे हैं होते हैं ना तो उनको समझाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है मैंने उसको यही बोला है कि नेक्स्ट टाइम से मत जाया करो तुम जाती हो इसीलिए ऐसा होता है तो अब तो मैं बस अपने बच्चे को ही समझा सकती हूँ दूसरों का जो बिहेवियर होता है वो तो मैं जाके चेंज नहीं कर सकती हूँ हालांकि हम तो ऐसा कभी नहीं करते कि हम लोग किसी बच्चे को घर बुला के इस तरह से बुरा बिहेव करें तो वो तो दूसरे के बिहेवियर को हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते बस अब मैं परी को वही समझा रही हूँ कि तुम अपने आप को कंट्रोल करो वहाँ पे मत जाना तुम नेक्स्ट टाइम से चाहे जितना भी बुलाए तुम मत जाना तो आज भी उसका मूड बहुत ज़्यादा ख़राब था
समहाउ मैंने उसको स्कूल भेजा समझा के। वो मतलब वही बात उसके जहन में बिल्कुल बैठ गई है कि बच्चे होते हैं ना तो उनके मन में बहुत कड़वी बात अगर कोई उनको बोल देना तो बहुत जल्दी उनके मन में बैठ जाती है। और पोखी के साथ भी कुछ दिनों पहले वो इंसिडेंट हुआ था, उसने सुन लिया था कि उसके बारे में कोई कुछ इस तरह से बोल रहा है, तो उसके भी मन में बहुत ज़्यादा लगा हुआ है। लेकिन अब मैं एक्सटर्नल फैक्टर्स को नहीं कंट्रोल कर सकती हूँ कि लोग कैसे करेंगे, क्योंकि अगर लोग बच्चों के साथ ऐसे बिहेव कर सकते हैं तो उनसे वो लोग ह्यूमन की कैटेगरी में मेरे हिसाब से नहीं आता है। तो मैं अब बस अपने बच्चों को ही समझा सकती हूँ कि इन सब को किस तरह से इग्नोर करना है, अवॉइड करना है और इन सब को अवॉइड करके आगे बढ़ते जाना है। लेकिन बच्चे हैं ना तो उनको समझाने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन मैं अगर समझाती रहूँगी तो बच्चे समझने लग जाएंगे, क्योंकि बच्चों को मेंटली प्रिपेयर करना बहुत ज़रूरी है। ये दुनिया बहुत हार्श है, मतलब ऐसे हार्श वर्ड के लिए उनको आगे प्रिपेयर करके रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो घर पे जैसे बिहेवियर मिलता है बाहर कभी नहीं भी मिल सकता उन लोग को। सो मेरा भी मूड थोड़ा सा मतलब अपसेट ही है इस बात से, बट देन अपसेट होके कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जब गलती आपकी नहीं होती है तो आपको अपसेट होके क्या फ़ायदा है। ये दूसरों का बिहेवियर है, और दूसरों के बिहेवियर अगर हमको हार्म करने लग जाए ना, दैट मीन्स हम लोग स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो हम लोग को खुद को स्ट्रॉन्ग बनना पड़ता है। बट क्या होता है ना, माँ के लिए जब बच्चों के साथ ऐसा कुछ होता है ना तो माँ को थोड़ा सा बुरा लगना ज़रूरी है। बट देन मैं सोचती हूँ कि उसमें मेरी तो गलती नहीं है ना, मेरे बच्चों की गलती है। तो हम हर्ट होके हम लोग नहीं रह सकते। तो परी को भी मैं वही समझा रही हूँ कि आगे बढ़ो और ऐसे लोगों को अवॉइड करो, ये लोगों की कैटेगरी में आते भी नहीं है। सो बस आज का वीडियो यहीं से मैं शुरू करती हूँ। अभी फ़िलहाल मैंने चाय अपना लिया हुआ है, चाय पीऊँगी, अपना ब्रेकफास्ट करूँगी और दिन की शुरुआत भी यहीं से करूँगी। सो अभी 8 बज रहा है, मेरा ब्रेकफास्ट भी हो गया है। अभी मैं जाके नहा लूँगी, क्योंकि योगा है 9:15। सो योगा से पहले मैं नहा लेती हूँ, क्योंकि बिना नहाए धोए मुझे योगा करना पसंद नहीं है। और बर्तन, घर में एक ही काम ऐसा होता है जो पाइल अप होते रहता है, वो है ये बर्तन। ये बर्तनों का ढेर लग गया है, और जो रात को मैंने बर्तन लगाए थे डिश वॉशर में वो अभी तक निकालने ही बाकी है। तो मैं पहले नहा लेती हूँ, उसके बाद ये सारे काम मैं कर लूँगी योगा से पहले जितना भी टाइम मिले, और उसके बाद जाके योगा करूँगी। और एक और तो खुशखबरी मैं आपको देना भूल ही गई थी अपनी परेशानियों में परेशानियाँ आती जाती रहती है, लेकिन खुशी जो होती है ना वो थोड़ी पल के लिए रहती है और हमको बहुत ज़्यादा खुश करके जाती है। और एक ऐसी खुशी की बात ये है कि मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया है। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू सो मच गाइस, ये सब आप लोग की वजह से मुमकिन हुआ है। तो और जो भी यूट्यूब से रिलेटेड जो भी मेरे डिटेल्स होते हैं ना, मैं समझती हूँ कि मुझे आपके साथ शेयर करना चाहिए, मुझे थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, क्योंकि जो कुछ भी है आप लोग की वजह से है। आप लोग ने जो मुझे इतना सपोर्ट किया है उसकी वजह से है। सो मैंने शायद आज से 3 दिन पहले मोनेटाइजेशन अप्लाई किया हुआ था, और उसके बाद मैंने छोड़ भी दिया था, उसको चेक नहीं किया था। मुझे लगा कि उसको अप्रूव होने में थोड़ा टाइम लगता होगा, लेकिन आज कल रात को मुझे मेल मिला कि आपका मोनेटाइजेशन अप्रूव हो गया है। तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। लाइक मैं 2020 से यूट्यूब पे काम कर रही हूँ। हालांकि पहले कुछ दिन मैंने उतना कंटिन्यूस काम नहीं किया था 2020 से लेके 2021 तक, बहुत स्कैंटली मैंने काम किया था। मतलब उतना मैं 100% अपना यूट्यूब में नहीं लगा रही थी। मैं बस उसको एक साइड, मतलब एक पैशन की तरह, एक जैसे कि कभी देना हुआ 1 महीना 2 महीने के बाद इस तरह से वीडियो देती थी। लेकिन मैंने अगस्त 2021 से बहुत अच्छे से काम करना शुरू किया था, और थैंकफुली अगस्त 2022 तक मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया है। तो ये 1 साल की मेहनत है, रंग लाई है, और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, और मैं आप लोग को सच में दिल से थैंक यू बोलना चाहती हूँ। सो फ्रेंड्स, बहुत ভাল খবৰ এটা তাৰ মাজত মই আপোনালোকক ক'ব পাহৰি থাকিলোঁ। মোৰ চেনেলটো কালি ৰাতি মনিটাইজ হৈ গ'ল। মই একচুৱেলি 3 দিনমানৰ আগতে এপ্লাই কৰিছিলোঁ। এপ্লাই কৰি পেলাই বহুতক কোৱা শুনো যে মনিটাইজেশ্যন এপ্ৰুভ হ'বলৈ টাইম লাগে। চ' মই সেইকাৰণে ভাবিলোঁ টাইম লাগিব, আৰু মই ইমান চোৱা নাই, কিন্তু কালি মেইল আহিছে যে মনিটাইজেশ্যন হৈ গৈছে। চ' মোৰ বিৰাট বেছি ভাল লাগিছে। মই 2020ৰ পৰা ইউটিউব চেনেলত কাম কৰি আছিলোঁ, কিন্তু 2020ৰ পৰা 2021লৈকে খুব বেছি মানে সেনেকৈ
ফ্ৰিকুৱেণ্টলি মানে দি থকা নাছিলোঁ ভিডিঅ' এমাহ দুমাহৰ পিছত কেতিয়াবা ক'ৰবাত গ'লোঁ দিলোঁ তেনেকৈ কিন্তু লাষ্ট অগষ্ট 2021ৰ পৰা মানে মোৰ মনত আছে লাষ্ট ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ ডে'ত মোৰ 200 ছাবস্ক্ৰাইবাৰ আছিলে আৰু তেতিয়াও মই এটা ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ চ' সেইকাৰণে সেইটো একদম ডিষ্টিংক্টলি মনত আছে আৰু 2021 অগষ্টৰ পৰা এতিয়া 2022 অগষ্ট মানে এবছৰৰ পিছত মোৰ চেনেলটো মনিটাইজ হৈ গৈছে আৰু মই বহুত বেছি হেপ্পী আৰু আপোনালোকৰ কাৰণে সেইটো পচিবল হৈছে চ' আপোনালোকক বহুত বেছি থেংকছ দিব বিচাৰি আছোঁ চ' থেংকছ এ লট গাইজ আৰু যাওঁ এতিয়া গা ধুওঁগৈ গা ধুই য়োগাৰ যা যোগাৰ কৰিম तो योगा में अच्छे से स्वेटिंग होने के बाद आज मतलब सुबह मैंने एरोबिक्स कराया तो पूरा आज वर्कआउट बहुत अच्छा हो गया था उसके बाद मैं आ गई थी फ्रेश हो गई थी उसके बाद हस्बैंड का मैसेज आया कि उनको आज टिफ़िन नहीं चाहिए तो मुझे मतलब बहुत ज़्यादा खुशी हो गई क्योंकि उस टाइम पे फिर मुझे फटाफट खाना बनाना पड़ता है तो मैंने सोचा नहीं मुझे मैं आज अपना एक रील ही शूट कर लेती हूँ तो ये मैं कहीं जाने के लिए रेडी नहीं हुई हूँ एक रील शूट किया है मैंने मेरे सेल्फ स्टिच सेल्फ डिज़ाइन ब्लाउज़ का एक सीरीज़ मैं शुरू करूँगी मेरे जो मेरा बुटीक वाला पेज है वहाँ पे इंस्टाग्राम में और इस बार ज़रूर मैं उस पेज का लिंक रख दूँगी इंस्टाग्राम का तो वहाँ पे रील लगाने के लिए इसलिए मैं रेडी हुई थी थोड़ा सा अभी जब मैं रेडी हो गई हूँ ना ऐसा लग रहा है कि कहीं चली ही जाओ लेकिन ये सारा हैवी साड़ी पहन के बाहर नहीं जा सकते अभी एसी रूम में हूँ तो थोड़ा सा अच्छा लग रहा है सो चाওক मैं रेडी हो पेला एक्चुअली हस्बेंडे कले जे आज हस्बेंडक टिफिन नालागे सो मैं बिराटे हैप्पी हो गलो योगा सेगा करी फ्रेश हो पेला मैं बोलो आज एटा रीले बनाई लওঁ सो मोर निजेर डिजाइन करा निजे स्टिच करा ब्लाउजर एटा सीरीजर एटा रील मैं बनाम और मोर बुटिकर पेजत दिम और मोर माने इंस्टाग्रामर स्टोरीটো मैं शेयर करिम और हैंडलটো इंस्टाग्रामर लिंकটো मैं राखि दिम एबार शियोर भिडिओत आपलोके चाबो কেনেকুৱা পাই ক'ব সো সেইকাৰণে মই আজি অলপমান ৰিলেক্স হৈ পেলাই অৱশ্যে এতিয়া খানা বনাব আছে পোৱালিকেইটাৰ কাৰণে সেইটো কাৰণে মই বনামগে লাহে ধীৰে সিহঁতে আহিবলৈও টাইম আছে সো সেইকাৰণে মই ভাবিলোঁ ৰিলটোৱে বনাই লওঁ সো আবেলি হৈ গ'ল ইহঁতে স্কুলৰ পৰা আহিলে ইহঁতক মই ভাত চাত দিলোঁ দি কৰি এতিয়া মই একচুৱেলি এটা ড্ৰেছ বনাই আছোঁ প্লাবিতাৰ কাৰণে তাই কাইলৈ বাৰ্থডে আৰু মই একচুৱেলি একো অৰ্ডাৰ দিয়াও নহ'ল আৰু ভাবিও আছোঁ যে তাই কিবা এটা মই নিজেই বনাই দিম নিজে বনাই দিয়া সমান হ'ব নোৱাৰে ন গিফ্টৰ ভেলিউ আৰু এইটো ব্লগ যেতিয়া যাব নহয় তাই বাৰ্থডে কাইলৈ হৈ যাব ব্লগটো কাইলৈ যাব চ' सरप्राइज भागेই তাই থাকি যাব होपफुली मैं कंप्लीट कर पाऊँगी ड्रेस সেইটোৱে ভাবি আছোঁ আৰু सो अभी इवनिंग का टाइम हो गया है और मैं आ गई हूँ अपने काम में मैं अभी यहाँ पे एक ड्रेस बना रही हूँ प्लाबिता के लिए उसका एक्चुअली कल बर्थडे है और मैं बहुत दिनों से सोच ही रही थी कि उसको कुछ मैं बना के दूँ लेकिन मेरा भी कुछ ऑर्डर था मैं नहीं लग पा रही थी इस काम पे तो आज से अभी शुरू किया है और कल है उसका बर्थडे होपफुली हो जाएगा तब तक तो अभी मैं उसी काम पे लगी हूँ और ब्लॉग को भी यहीं पे एंड करती हूँ होप आपको मेरा ये वाला ब्लॉग पसंद आया होगा और अगर पसंद आया है ना तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा सो बाय फॉर नाउ गाइज मैं ब्लॉगটো ইয়াতে সামৰিছোঁ আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ব্লগটো চাই ভাল পাইছে আৰু যদি চাই ভাল পাইছে নহয় তেতিয়াহ'লে মোৰ চেনেলটো প্লিজ সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব বাই ফৰ নাউ গাইজ